Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today let's start chapter number 20, development. Page number 351. So what is development? Development मतलब क्या होता है ये आप सबको पता है. So the basic question arises that what is development? So development is a complex issue with many different and sometimes continuous definitions. सो डेवलपमेंट की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, बट ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है. डेवलपमेंट मीन्स कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको, आपके पास अच्छी नॉलेज हो, आप लॉन्ग लाइफ जी सको एंड आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो मनी है, ऑक्यूपेशन है, वो अच्छी हो और बेटर होती जाए. सो दैट इज़ डेवलपमेंट. So the National Development Program uses a more detailed definition. According to them, development is to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for the decent standard of living, and to be able to participate in the life of community. कि आप अच्छे से रह सकें, आपके पास अच्छी नॉलेज हो, आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, डिसेंट हो, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आप रहें, ऑक्यूपेशन हो, एजुकेशन हो, एक्सेट्रा. दैट इज़ डेवलपमेंट. सो हर एक की जो प्रोग्रेस है ह्यूमन बीइंग की, उन्हीं प्रोग्रेस से वर्ल्ड की और कंट्री की भी डेवलपमेंट डिपेंड करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस के ऊपर. So there are two important approaches to the subject of development: economic development and human development. So development two types में divided है. two इसके important approaches है. कौन कौन से? economic development and human development. So economic development क्या हो जाएगा? That is referred to the sustained concentrated actions of policy makers and community that promote the standard of living and economic health of a specific area. Economic development can also be referred as the quantitative and qualitative change in the economy. So economic development क्या हो जाएगा कि quality wise भी और quantity wise भी changes हो, progress हो किसी भी wealth way या capital में, that is known as economic development. Such actions involve multiple areas including development of human capital. Human capital means जो उनकी occupation है, जो money है, वो increase हो, criterial infrastructure, religious competitiveness, environmental sustainability, social inclusion, health, safety, literacy and other initiatives. So ये सारे fields में जब आप progress देखोगे, जब आप अच्छी इंक्रीमेंट देखोगे, आप एक देखोगे कि किसी में सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि ह्यूमन के पास अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं, इसी से वो अच्छी लाइफ लीड कर सकता है, अच्छी लिविंग कंडीशंस में वो रह सकता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, और जो उनके ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन उससे अच्छी मिल सकती है, रिलीजियस भी वो अच्छे होने चाहिए, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अगर मनी पे डिपेंड कर रही हैं, इकोनॉमिक पे डिपेंड कर रही हैं. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही होगा जब ये सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर सकें और एक स्टैंडर्ड एंड डिसेंट लाइफ लिव कर सकें. दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. So what is human development? Human development is a concept within the scope of the study of the human condition, specifically international development relating to international and economic development. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा उसी से तो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. जब ह्यूमन अच्छी हेल्थ होगी, उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, उनको प्रोग्रेस होगी, देन ओनली किसी कंट्री की डेवलपमेंट हो पाएगी. So development is thus not expanding the choices people have to lead lives they value, improving the human conditions so that people have the chance to lead full lives. ह्यूमन कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से लिव कर सकें. Thus the human development is about more and more economic growth, which is the only means of enlarging people's choice. अगर ह्यूमन बीइंग के पास वो अच्छे लिटरेट हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, वो लोग अच्छे लिविंग कंडीशंस से बिलोंग करते हैं, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसे अच्छे हैं, जॉब अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तभी उनकी डेवलपमेंट
दे आर डेवलप्ड, तभी ये बोला जा सकता है, तभी वो डेवलप्ड हैं, उनके पास चॉइसेस भी हैं। एंड आप कोई भी चीज़ अपनी चॉइस के लिए कब ले सकते हो, जब आपके पास पैसे हों। तो पैसे जब होंगे इट मीन्स कि आप डेवलप्ड हो, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन इंडिया। Developing countries adopted goals like faster economic growth through industrialization, modernization of agriculture, and extending education. In India, a series of 5-year plans for development were made starting from the 1950s, and these included a number of mega projects such as Bhakra Nangal Dam, setting a steel plant in different part of the country, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग कल्चरल टेक्नोलॉजी। सो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो एग्रीकल्चर में, एक्सेट्रा। सो इंडिया में इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? जब इंडिया में फर्स्ट 5-year प्लान फॉर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1950। इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? भाखरा नंगल डैम स्टार्ट हुआ था, और कई सारे स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे, माइनिंग फैक्ट्री सेटअप की गई थी, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन सेटअप किए गए थे, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स। किसी भी अच्छी चीज़ की क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ती है। सो जब इंडिया डेवलप कर रही थी तो उसके क्रिटिसिज्म क्या हो रहे थे? द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉस्ट क्या क्या थी? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटीज़ ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिग डैम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ और अदर प्रोजेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीज पॉवर्टी। सो जो डेवलपमेंट हो रहे थे तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, लाइक सोशल कॉस्ट। इससे होता है ना कि किसी कीमत पे कोई काम करना। सो डेवलपमेंट क्या हो रहा था? सोशल कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी, सोसाइटी डैमेज हो रही थी। लाइक जब कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, डैम्स बन रहे थे, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, और इस टाइप्स के जब प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, सो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटीज़। डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीज पॉवर्टी, जिसकी वजह से जब उनके पास शेल्टर नहीं रहा, खाने पीने की कोई जगह नहीं रही, कोई ज़रिया नहीं रहा, सो इससे पॉवर्टी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। द वर्स्ट अफेक्टेड आर द रूरल agricultural communities who are displaced from their traditional occupation and regions and end up migrating from countryside to urban areas. सबसे ज़्यादा किसके साथ कौन इफ़ेक्ट हुआ? रूरल, गांव के लोग जो कि मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। जब उनसे उनकी लैंड ही ले ली गई फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, सो उनको रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ में माइग्रेट करना पड़ा, एंड दैट कॉज टू पॉवर्टी। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? अभी आपने सोशल कॉस्ट पढ़ी कि सोसाइटी को कैसे डैमेज हुआ, लोग बेघर हो गए, उनको खाने पीने की जगह नहीं रही, उनकी ऑक्यूपेशन छीन ली गई, एंड पॉवर्टी को उनको फेस करना पड़ा। एनवायरमेंटल कॉज क्या थे? जब इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, सो जो सराउंडिंग थी, जो नेचर था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया था उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन किया जाने लगा। सॉइल पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाने लगे, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाने लगे। एंड जो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब सेटअप हुई तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कहाँ जा रहा था? इन रिवर बॉडीज़। सो इससे वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा था। लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ के आसपास के लोगों को जब जंगल को, फॉरेस्ट एरियाज़ को जब हटा दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, सो वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको भी सफ़र करना पड़ा था। सो these are all environmental cost for development. Next is environmentalism. Environmentalism is a broad philosophy, ideology and social movement regarding concern for environmental conservation and improvement
of the health of the environment, particularly as a measure for the health, seeks to incorporate the concerns of non-human element. Environmentalism advocates the preservation, restoration, improvement of the natural environment and refers to the movement of control pollution to protect plant and animal diversity. So environmentalism क्या है? जिसमें प्रिजर्वेशन हो, रिस्टोरेशन हो और इम्प्रूवमेंट हो नेचर का, प्लांट्स का, ट्रीज़ का एंड एनिमल्स का, और पोल्यूशन पे रोक होनी चाहिए जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकें प्लांट्स को और एनिमल डाइवर्सिटी को. दैट इज़ नोन एज एनवायरमेंटलिज्म. सो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट कौन कौन से थे जो एनवायरमेंटलिज्म जो थे उसके कुछ फेमस वर्कर्स भी थे, एक्टिविस्ट थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें. फर्स्ट इज़ केन सारोवीवा, सेकेंड इज़ मेधा पाटकर. The two main events which brought Medha Patkar into limelight were, मेधा पाटकर जो थी एक्टिविस्ट, वो उनको सबसे इम्पॉर्टेंट 2 इवेंट कौन से थे जिससे मेधा पाटकर को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली, पब्लिसिटी मिली. फर्स्ट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेकेंड इज़ लवासा प्रोजेक्ट. लवासा प्रोजेक्ट क्या है? लवासा इज़ अ lavish project by Hindustan Construction Corporation in Maharashtra. It is a yet to be completed city. This was in news because of political corruption, environmental damage, land uses of water resources, etc. Medha Patkar could not resist environmental damage. She filed a PIL, public interest legislation in the Supreme Court against the Lavasa project. So Lavasa project महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का. इससे क्या हो रहा था? पॉलिटिकल करप्शन हो रहा था, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, वाटर पोल्यूशन हो रहा था, लैंड पोल्यूशन हो रहा था, एक्सेट्रा, जिसकी वजह से मेधा पाटकर ने एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन जो है फाइल की थी इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस लवासा प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज असेसिंग डेवलपमेंट. सो जैसे कि ये अलग अलग डेवलपमेंट्स होती है उन्हीं के बेसिस पे कंट्री की डेवलपमेंट भी फेस करनी पड़ती है. नाउ द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ द डेवलपमेंट. अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ राइट क्लेम. आपको राइट क्लेम आप दे सको कि कौन बेसिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या कौन बेसिकली ज़्यादा कॉज कर रहा है डेवलपमेंट में, किसकी वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, या डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो द राइट क्लेम इज़ फर्स्ट. सेकेंड इज़ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. जो ये डेवलपमेंट हो रहा है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें सारे लोग जितने भी कॉमन जो बेनिफिट है उसके लिए एक पॉलिसी फॉर्म होनी चाहिए. जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर वोटिंग करनी चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड जो रूलिंग और विनिंग पार्टीज़ रहती हैं उनको भी इन्वायरमेंट के वेलफेयर में भी और ह्यूमन के वेलफेयर में भी डेवलपमेंट के लिए जो काम आ सके उसके लिए भी वर्क करना चाहिए. एंड सेकेंड इज़ डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल. सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं. किसी एक को अगर मोबाइल की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी मोबाइल की ज़रूरत हो. अगर किसी एक को शेल्टर की ज़रूरत है ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी शेल्टर की ज़रूरत हो. सो सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं. हमारे पास अगर अच्छी एक कार है या अच्छा एक घर है तो हम चाहेंगे कि हमें और अच्छी कार मिले या और अच्छा घर मिले. लेकिन जो हमसे जो नीचे हैं, जो पुअर पीपल है, जो पॉवर्टी को बिलोंग करते हैं, उनका डेवलपमेंट क्या होगा? उनका डेवलपमेंट ये होगा, उनका गोल ये होगा कि उनको एक घर मिल जाए, एक रहने की जगह मिल जाए एंड एक प्रॉपर फूड मिल जाए जिससे उनकी नेसेसिटी जो है वो फुलफ़िल हो सके. So development should not be measured only by the number of cell phones in the country or by the sophisticated weapons which are developed or by the size of car which people drive, but the quality of life enjoyed by the people in terms of happiness, harmony and satisfaction of essential needs. Development means सिर्फ आपके पास कितने फ़ोन्स है, कितनी कार है, कितने आपके पास डेवलप वेपन्स है, इस पे बेसिस नहीं करता. रादर डेवलपमेंट मीन्स
कि किसी कंट्री में, कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पे हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो, एक सेटिस्फैक्शन हो, और जितने भी सबकी बेसिक नीड्स हैं वो सबकी फुलफ़िल हो सके, एसेंशियल नीड्स फुलफ़िल हो सके, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेटेड हो. सो दैट इज़ डेवलपमेंट. So we have completed the chapter. Okay, and you have to do question number 1. What is the purpose of development, or what are the aims of development? And one question from Long. What is meant by economic development? You have to do these 2 questions. And NCERT के questions भी आप read कर लीजिएगा. Okay. So in our next class we will start the new chapter.